So I will be talking about sanitation, and in this, I will be talking about first what is sanitation, importance of sanitation, and then problems because of not having proper sanitation. And as the title of the talk suggests, I will also be talking about what can be done at an institution so that we have a good environment. So this is the basic outline of today's discussion. Okay, now let's start. Most of us, when we enter into any big city, we are greeted by these scenes. है ना? These are very common scenes. हमारा स्वागत जो है ज्यादातर ऐसे होता है ना? नहीं तो फिर ऐसे होता है. These are the common sights which we face when we enter into any city. Now, what is cleanliness? Cleanliness is both the abstract state of being clean and free from dirt, and the habit of achieving and maintaining that state. Now, there are two things here. First of all, we want to achieve. If you can see, first thing is we want to achieve, but more importantly, we have to maintain that state. It is not that we have just achieved something. It's not that कि हमने एक रेस लगाई और हम पहुंच गए. No, we have to race. We have to maintain that state. ये आप लोग अपने को म्यूट कीजिए भाई. Please mute yourself. You are disturbing the class. So, cleanliness is both the abstract state of being clean and free from dirt, and the habit of achieving and maintaining that state. Now, this idea of cleanliness or swachhata is prevalent in all the civilization across all times. It concerns not only physical and mental health of human beings, but also their spiritual development. And you can easily see what Mahatma Gandhi said. Mahatma Gandhi said that sanitation is more important than independence. Person who was languishing in jail, who was striving for independence, he said that for him, independence is important, but sanitation is more important than independence. You can feel the saying behind. माइक बंद कर दीजिए. रसूल जी प्लीज माइक बंद करिए ना. रसूल जी प्लीज और माइक. सभी लोग एक बार ही बंद कर लीजिए ना प्लीज. This is really disturbing, right? If you are not interested, you should have not joined it. है ना? प्रदीप जी प्लीज स्टॉप करिए अपना माइक. Now, every religion talks about cleanliness. Bible has many rituals of purification. Bhagavad Gita describes it as one of the divine qualities which one must practice. And we have a Sanskrit word for cleanliness, shaucham. The Holy Quran says, He loves those who keep themselves pure and clean. What is He? He is Almighty. So, every religion, every civilization, all talk about cleanliness. Now, what is sanitation? The process of keeping places free from dirt, infection, disease, etc., by removing waste, trash and garbage, by cleaning streets and washing ourselves, having safe drinking water, this is sanitation. So act of cleaning ourselves and keeping the environment clean is sanitation. Now,
why sanitation is important. Sanitation is important for health. We all know that good sanitation can prevent us from getting diarrhea and also can prevent from other serious diseases, which we will be talking about. It is a good economic investment. When we practice good sanitation, our family saves money on healthcare and treatment. We all know that health is wealth, but to be healthy, we need to have some good practices, one of which is sanitation. And if somebody falls ill, it can affect the purse. We all know that many of the people, they go into debt just because of some sickness, some sort of disease in the family. है ना? So it is a good investment, important for social development. When we keep ourselves clean and our surroundings clean, we fall sick less and more likely to attend our work regularly. And if we are healthy, we can help build a strong society. And it also helps the environment. When we get rid of the waste properly, we can help to protect water sources. It also means that we don't have to smell the disgusting mess all around us. And remember, this sanitation is achievable. Better sanitation is possible, and it all starts with me and you. So it is achievable. Why? Because we can do it together. Now, sometimes what happens? There are many serious diseases which happen just because of poor sanitation. There are certain practices. One such practice is open defecation. And because of this open defecation, we have more than 200 million people affected in India of hookworm infestation. Hookworm क्या चीज होती है? एक कीड़ा होता है जो पेट के अंदर चला जाता है. अभी इसके बारे में we will talk about it. Now, this feces, 1 gram of feces contains 10 raised to the power 6 viruses, 10 raised to the power 5 bacteria, and 10 raised to the power 2 parasite. Can you imagine? Just 1 gram of feces contains lakhs of bacteria, viruses and bacteria, and thousands of parasite. This hookworm, this previous slide, if you see this previous slide, hookworm infestation, this is a cyst, and just 1 gram contains thousands of cysts. So remember this, we'll be using it in subsequent talk. Now, what happens? What is the disease burden due to poor sanitation? We have cholera. Many of us know that what is cholera. And can anybody tell me what is cholera? What is cholera? It's a It is a waterborne disease. waterborne disease. It is a waterborne disease. इसको क्या कहते हैं? इसके लिए हिंदी वर्ड क्या है? Haja. हैजा. हैजा, हैजा, है ना? So it is a waterborne disease, diarrhea, and this can lead to death. Then we have diarrheas and dysenteries. Dysentery is blood in stool. Typhoid. We are having so many cases of typhoid around us, and it is also because of poor sanitation. Then ankylostomiosis, amoebiasis, roundworm infection. Again, they are all worm infestation. They are all worms. They are parasites inside us. Now, if you see, more than 200 million people are affected by ankylostomiosis, 15% prevalence of amoebiasis, and 100 million children infected by roundworm. All these things, you will be saying that why I am talking about worms so frequently. See, these worms, they are parasites. They reside inside us,
and they take our nutrients. And the most common implication of worms is anemia. What is anemia? Anemia is less deficiency of of iron. less of hemoglobin. Now, what happens because of less of hemoglobin? Hemoglobin carries oxygen. So there is less oxygen supply. Now, what does this lead to? What does anemia lead to? Anemia lead to decreased work capacity. It leads to decreased mental performance, or you can say mental impairment. There is growth retardation, easy fatigability. मरीज जो है ना बहुत जल्दी जल्दी थक जाता है, काम नहीं कर पाता है. There can be learning deficiency. मैं बात कर रहा हूं बच्चों की, है ना? So attention deficiency. All these can happen because of anemia. And you can see how sanitation can lead to worm infestation, which leads to anemia. Very common. Then comes hepatitis A infection. इससे क्या होता है? Jaundice. What is jaundice? Yellow discoloration of skin. And this is because of hepatitis A infection. Now, jaundice can happen because of many things. But I am talking about infective jaundice. I am talking about infective jaundice. And that too because of hepatitis A. This is because of poor sanitation. Water which we are using, it is not pure, it is not clean. The food which we are eating, it might be infected, and this can lead to jaundice. Remember, हम लोगों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगा हुआ है, वो बी का लगा हुआ है. हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए की. सो दिस इज रिलेटेड टू पुअर सैनिटेशन. अब आप कहोगे कि ए का टीका क्यों नहीं लगा? Why we are being given hepatitis B vaccination? Hepatitis B, no doubt, is less common, but hepatitis B can lead to liver cancer. Therefore, it is being prioritized. But if somebody wants to take hepatitis A vaccine, that vaccine is available, and one can take it from the market. So these are the direct disease burden due to poor sanitation: cholera, typhoid, worm infection, hepatitis, and previously poliomyelitis. Now, there are certain vector-borne diseases because of poor Excuse sanitation. me, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, sorry to say, we have already discussed these topics on the class held on 21st, sir. Hello. Sir, yes, sir. सर जो 21 तारीख को क्लास हुई थी, हम लोग सब उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी क्या सर. सेम बैच है? यस सर, यही सब हम लोग पढ़े Yes, थे. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, जी सर. we are already. Yes, sir. Same Yes, topic, sir. same presentation. Today we are going to have a class on waste management, sir. टॉपिक एक मिनट रुकिए. Waste management institutional measures. Today's topic.
आवाज नहीं आ रही क्या? अभी हेलो, कोई बोल आवाज नहीं आ रही रहा है? सर। सर आवाज तो आ रही है, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, कोई बोल नहीं रहा। अभी प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा सर। ओके सर। Okay. Participants, please bear with us. There is a confusion with the topic. Now he is just changing it. Okay, just wait. Yes. आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज आ रही है किसी को? कर लीजिए सर। क्लास होल्ड है डियर पार्टिसिपेंट, अभी प्लीज प्रेजेंट नहीं हो रहा है। क्या आवाज आ रही है किसी को? आवाज आ रही है सर। जी सर, आ रही है। भाई जब सर ने बोला है कि थोड़ा वेट करिए तो क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज आएगी ना, जब बोलेंगे तब तो आएगी। अभी बोला है थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन है तो थोड़ा हो जाता है, तो फिर अभी आवाज आएगी। नहीं वो तो दिखे screen. Okay. Actually, I'm extremely sorry. I thought that this is a different batch. कोई बात नहीं सर, हो जाता Okay, है। है ना? Now, नो प्रॉब्लम सर। ओके सर। now, No problem, sir. okay. I will be talking about again close to us, not in close in the sense that it is related to our health, and I will be discussing. It will be more of a discussion
on, we all know that there is an old saying, prevention is better than cure. We all know that. है ना? Prevention is better than cure. So we will discuss today, and I will try to present my view that yes, prevention is better than cure. Okay. So this is what we will be talking about. Now, from where did this saying come from? Prevention is better than cure. This concept of taking action early to ward off disaster is not new. It came way back in 13th century. The saying behind it was, it is better and more useful to meet a problem in time than to seek a remedy after the damage is done. So the Dutch philosopher Erasmus, Desiderius Erasmus, he said, he coined from this saying that prevention is better than cure. So, and this is like from centuries, people are using this term. Now, there are two types of people in this world. One, those who get their car regularly serviced. There might be some people in this batch also who will be falling in the first category, that is those who get their car regularly serviced. Then there would be the lesser mortals like us, those who hear a funny noise in the engine and keep on driving until they need a roadside assistance to tow them to the nearby mechanic. So this car is basically our body. So I'm trying to correlate it. Now, it is the same when it comes to our health. Why we might delay seeing a doctor until we feeling unwell, but instead of trying to get better once we are sick, it's far better to do what we can do to avoid getting sick in the first place. And why? Because prevention is better than cure. Now, prevention basically means preventing from occurrence. कोई चीज होने से पहले रोक ली जाए. This is called as prevention. Benjamin Franklin said that an ounce of prevention is worth a pound of cure. So all these things say that prevention is better than cure. Now, what is basically prevention? I will not go into the details. I don't want to tax people. बहुत आगे आपको वो चीजें हम डिस्कस करेंगे जो हम दोनों से रिलेटेड है. हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, एंड हम लोगों को यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं है. इट इज बेसिकली वी वांट टू नो सर्टेन थिंग्स. देयर आर 3 levels of prevention: primary, secondary, and tertiary. Primary prevention is an intervention implemented before there is evidence of a disease or injury. Like example, we encourage exercise and healthy eating to prevent individuals from becoming overweight. है ना? हम पहले से ही एक्सरसाइज कर रहे हैं. मतलब एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ? हम अपनी कैलोरीज को खर्च कर रहे हैं. And we are eating in a healthy manner. क्यों? To become overweight, free from becoming overweight. तो ये क्या हो गया? Primary prevention हो गया. What is secondary prevention? An intervention implemented after a disease has begun, but before it is symptomatic. मतलब क्या हुआ? We got our body checkup, BMI निकलवाया, weight upon height, weight in kilogram, height in meter, है ना? और हमने देखा कि हम क्या हो गए हैं? ओबीज हो गए हैं. ओबीज कब कहते हैं? 25, मतलब ओवरवेट हो गए हैं 25 के ऊपर. अगर ओबीज है तो 30 के ऊपर. Now, if we are practicing certain interventions, what is tertiary prevention? An intervention implemented after a disease or injury is established. We help these individuals lose weight to prevent
way तो निकलेगा progression फिर आदमी का मूड बदल जाता to prevent progression to more severe consequences. Now, what are the basic levels of prevention? What are the interventions? Primary prevention, health promotion, specific intervention. Secondary prevention, early diagnosis and treatment. And in tertiary prevention, disability limitation and rehabilitation. हमने जब अभी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में बात हम कर रहे थे, आई वाज टॉकिंग इन द प्रीवियस क्लास आल्सो एंड टुडे आल्सो, दैट इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन. बिल्कुल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है किसी भी डिजीज का. अभी कोविड-19 में वी ऑल टुक वैक्सीन. दैट वाज प्राइमरी प्रिवेंशन. दैट वाज प्राइमरी प्रिवेंशन. नाउ देयर आर सर्टेन डिजीजेस which are prevented just by taking certain nutrients. There is a very interesting story that जो sailors होते थे, long journey sailors, sea sailors, जो sea voyage पे जाते थे, उनके अंदर bleeding gums होता था, बहुत जल्दी bruisability हो जाती थी, and there were lots of mortality, there were lots of death. By an accident, a scientist named as James Lind, he came up with the solution that if we start giving lemons to the sailors, what will happen? The bleeding will not take place. He was not knowing the cause. But somehow he, through his experiment, and what happened? The sailors started taking citrus fruits with them, oranges, lemons, all these things. And because of this, the deaths were controlled. And because of this, the British Army was sometimes called as limeys because they used to take lemons with them. So, क्या होता था? Vitamin C deficiency एक बीमारी होती है, which is also called as scurvy. Scurvy. ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, बोन के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें. सो अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना. वी आर प्रिवेंटिंग इट. वी आर टेकिंग लॉट्स ऑफ विटामिन सी विद अस. classical example of just a simple measure. Now, early 90s में और late 90s और early 20th century में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी कॉलरा की एपिडेमिक फैली. अभी I was talking about cholera only just few minutes back, and today we know that सबने किसी ने बताया भी था, it is because of impure water, because of contaminated water. But 100 years back, people were not knowing about it. There was a doctor called as John Snow. He mapped all the deaths of cholera. मतलब कैसे मैप की उसने? उसने देखा कि किस किस डेथ्स हुई है कॉलरा की, और देन he took the history कि कहां से पानी लिया. So उसने इम्प्लीकेट किया एक हैंडपंप को, कि जिन लोगों ने एक पर्टिकुलर हैंडपंप से पानी लिया है वहां डेथ ज्यादा हुई. What did he do? उसने हैंडपंप का हैंड निकाल दिया, है ना. जो पहले हम लोग के बचपने में क्या होता था ना, कि वो एक स्क्रू निकाल दिया जाता था हैंडपंप का, है ना, जिसके घर का होता था, अरे भाई बहुत यूज हो रहा है. उसने प्रिवेंशन के लिए he removed the handle of the pump, और उससे क्या हुआ? There was declining of the epidemic. एक छोटा सा, अभी उसको पता नहीं है कि कॉलरा से हुआ, कॉलरा कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो रहा है. ओके, सो and this very observation of John Snow saved so many lives.
तो ये अगेन वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी आप लेफ्ट साइड में अगर आपको सबको स्लाइड दिख रही होगी, यहाँ पे ये देखिए एक बीमारी दिख रही है जिसको हम लोग जानते भी नहीं, स्मॉल पॉक्स। Smallpox. Yes, sir. स्मॉल पॉक्स Yes, sir. और बहुत अच्छी स्टोरी है स्मॉल पॉक्स की, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे कि Yes, sir. एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने क्या किया? he said that I hope that someday the practice of producing cowpox in human beings will spread over the world. When that day comes, there will be no more smallpox. ये उनके वर्ड्स थे। क्या देखा? देखिए एक ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने। स्मॉल पॉक्स बहुत कॉमन था 100 साल 200 साल 300 साल पहले, इट वाज वेरी कॉमन। ही ऑब्जर्व दैट जो लोग मिल्क का बिजनेस करते हैं, दोज हु आर वेरी क्लोज टू द काउ, दे डेवलप सर्टेन ब्लिस्टर्स इन देयर हैंड। उसको लगा कि उनके हाथ पे कुछ फोड़े निकल, फुंसी निकल आते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन था और उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। ये दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन, वेरी कीन ऑब्जर्वेशन, है ना। न्यूटन की बात तो हम लोग बहुत करते हैं कि सेब गिरा और उसके सर पे गिरा और उसने ग्रेविटी की बात, लेकिन ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट सॉ दैट कि जो मिल्क हैंडलर्स होते हैं, काउ हैंडलर्स होते हैं, उनके हाथ पे एक वेसिकुलर लीजन्स हो जाते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं होता। अब इन्होंने क्या किया, जेनर साहब ने, व्हाट डिड ही डू? He took the fluid from the ulcers of that milkman and he injected into a human being. अब यहाँ पे दो स्टोरीज हैं, एक अपने बेटे को लगा दिया, एक खुद को लगा दिया, तो दोनों ही चीजें हैं, है ना। आप लोग सब टीचर्स हैं, आपने भी ये चीज पढ़ी होगी, है ना। और क्या हुआ फिर? उसने क्या किया कि स्मॉल पॉक्स का जो मरीज होता है उसमें से फ्लूइड निकाला और वो इंजेक्ट कर दिया और देखा कि स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट वैक्सीन, दिस वॉज द फर्स्ट वैक्सीन। एडवर्ड जेनर टेस्टेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन on May 14, 1796, and in 1980 the world was declared as smallpox free. It was declared as smallpox free. आप कहेंगे स्मॉल पॉक्स में क्या होता था? स्मॉल पॉक्स चेहरा पूरा खराब हो जाता था, ब्लाइंडनेस हो जाती थी, कभी कभी डेथ भी हो जाती थी। अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो पोलियोमाइलाइटिस ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी भी कुछ कंट्रीज में है ना। अगेन अ स्टोरी फुल ऑफ एडवेंचर। कैसे घर घर जाके दवा पिलाई गई, कैसे पहले तो वैक्सीन आई। देयर आर टू वैक्सीन्स, एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है, एक ओरल वैक्सीन है ना। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। अगेन, can you see the misery of the child? He might be smiling, he might be showing his teeth, but for life he's crippled. But now we can safely say that at least in this part of the world, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, we are free from, and 98% of the world is free from this dreaded disease called as poliomyelitis. How? By vaccination. Okay, so again a very important two success stories I have told you. One, smallpox eradicated, poliomyelitis on the verge of eradication. सिर्फ तीन चार कंट्रीज हैं जहां पे दुनिया में पोलियो बचा है। एक तो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, जहां पे अभी बचा हुआ है, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और छुटपुट कभी कभार एक दो अफ्रीकन कंट्रीज में और हो जाता है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज होल वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम दिस crippling disease called as poliomyelitis.
Again, an example of primary prevention and how vaccines by vaccines we are able to not only prevent disease but also eradicate the disease. Eradicate का मतलब क्या हुआ? दुनिया से खत्म कर देना, पूरी दुनिया से खत्म कर देना, है ना। अब बहुत ये तो हमने बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों ने बात की कुछ सक्सेस स्टोरीज की। ये अगर हम लोगों को स्लाइड दिख रही हो, दो तरह की डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं? जो एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे शायद किसी ने पिछली बार, इफ आई रिमेम्बर, इफ इट इज द सेम बैच, किसी ने एग्जाम्पल दिया था किसी चीज का, तो हमने कहा था मैन इज द एनिमी ऑफ अनदर मैन। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। अब आप देखिए किस तरीके से डिजीज ट्रांसमिशन होता है पर्सन टू पर्सन। डायरेक्ट कांटेक्ट, हाथ मिलाना, क्लोज कांटेक्ट में, बाय एयर, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अभी कोविड के टाइम पे तो हम लोगों ने कितना इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात की, कोई भी सरफेस है तो उसको हमने क्लीन कर दिया। बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, अभी हेपेटाइटिस ए की ही बात हो रही थी, तब आप लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा हो गया है, फिर से एक लेक्चर रिपीट हो रहा है। इंसेक्ट वेक्टर की जब बात आई तो बिल्कुल आप लोग कहा कि अब तो नहीं सुनना है, बिल्कुल बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, है ना। इंसेक्ट भी करता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, और फिर बाइट ऑफ अ इन्फेक्टेड एनिमल, दैट इज रैबिड एनिमल। तो ये क्या है? डायरेक्ट, ये टाइप्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। ब्लड से भी हो सकता है ना, फूड से भी, वाटर से भी। ये सारी की सारी जो है, ये हमारी स्क्रीन चली गई है ना? ओके, सो नहीं सर, दिख रहा है। दिख रही है? नो दिख सर, रहा है सर, ना सर दिख रहा है, विजुअल है सर। दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज के कुछ एग्जांपल, कॉलरा है, वाटर, फूड और वाटर से हो रहा है। टाइफॉइड, अच्छा टाइफॉइड को हम लोग समझ रहे हैं ना, पिछली बार भी, पिछले लेक्चर में भी टाइफॉइड की बात हुई थी। आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट टाइफॉइड, है ना। सो हेपेटाइटिस, दैट इज जॉन्डिस फूड एंड वाटर से। इन्फ्लुएंजा बाय एयर, ट्यूबरक्लोसिस पिछली बार भी बात हुई थी। मलेरिया, टेटनस, दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज। Now, how to prevent this disease? Because we are talking about prevention. ये 5 Ds हैं. There are 5 Ds for prevention. Number 1, dump. By periodically dumping standing water, you can prevent mosquito from growing into adults that feed on you. हमको वाटर को एक जगह regularly draining standing water sources like pet water dishes, water troughs, all these things, they will reduce the mosquitoes. Dressing for outdoor activities properly. Long pants, long sleeves, long shirts. DEET, DEET. What is DEET? Repellents. The mosquito repellents. When at dusk and dawn, because mosquitoes are very active during this period, जब सूरज डूब रहा होता है और जब सूरज उग रहा होता है. So these are the 5 Ds for prevention of mosquito-borne diseases. पिछली क्लास में हमने आपको एक स्लाइड दिखलाई थी पेट्री डिश वाली. अब देखिए कितना कुछ है उस हाथ पे. अगर आप देखिए, हेपेटाइटिस ए, स्टेफाइलोकोकस, सीडोमोनास, हीमोफिलस, ये सारे सब कुछ हमारे हाथ में है. These are all there in our hand. तो उधर मॉस्किटो से, इधर उससे. तो कौन लोग हैं जो अब भी हैंड वॉशिंग के बारे में नहीं जानते हैं? शायद ही कोई ऐसा होगा. अच्छा, कितनी देर करनी चाहिए हैंड वॉशिंग? हाँ, कितनी देर? 30 सेकंड। 20 हाँ? seconds. 20 सेकंड. 20 seconds.
30 सेकेंड्स है, कुछ ने किसी ने कहा 30 सेकेंड्स, किसी ने देखिए 21 सेकेंड, ये तो बड़ा प्रिसाइज भाई। 21 सेकेंड अलार्म लगा के करेंगे फिर तो हम लोग, है ना सर? अलार्म लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्या हम लोग अगर हम लोग चाहें तो क्या एक वो कोविड में हम लोगों ने बहुत किया होगा, क्या हम एक बार स्टेप्स कर सकते हैं हैंड वॉशिंग के? क्या कर सकते हैं सब लोग? आई डोंट वांट कि आप लोग अपना वीडियो ऑन करें, लेकिन एक बार अगर हम कर लें तो रिवीजन हो जाता है ना? सबसे पहले रब हैंड्स पाम टू पाम, राइट पाम ओवर लेफ्ट पाम, और इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो इंटरलेस्ड फिंगर्स हैं ये इंपॉर्टेंट। फिर पाम टू पाम विथ फिंगर्स इंटरलेस्ड, फिर बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम्स, है ना? ये चीज ठीक है। और थम्स का ये रोटेशनल कपिंग ऑफ लेफ्ट, ऐसे ही दोनों तरफ करना है। अब ये दोनों तरफ करना है ना? अब वो एक ऐड आता था टीवी में, मेरा साबुन तेरे साबुन से तेज है ना? एक बच्चे का ऐड आता था। ये सब भ्रामक एड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ऐसा सर कुछ नहीं है। 30 सेकेंड्स तक के हैंड वॉशिंग करनी है। बस एक चीज का ध्यान रहे, आप जब रबिंग कर रहे हो तो टैप को बंद रखें, पिछली क्लास की, है ना? ऐसा ना हो कि वी वेस्ट, ट्राई टू वेस्ट वाटर। अगर हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, डायरिया तकरीबन 40% कम हो जाता है, डिसेंट्री 25 से 30% कम हो जाती है, और बहुत सी अदर डिजीजेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम बिफोर ईटिंग फूड, आफ्टर डिफिकेशन, बिफोर कुकिंग फूड, बिफोर ईटिंग फूड एंड बिफोर फीडिंग आवर चाइल्ड, अगर हम हैंड वॉशिंग करेंगे तो वी कैन रिड्यूस the chances of diarrhea, pneumonia and many other diseases. So again, a very good example of prevention, just hand washing, just hand washing. So it is very important that we wash our hands properly, है ना? Now if you see the other important thing is that many times we should avoid shaking hands. जैसे आजकल भी थोड़ा सा फ्लू आ रहा है, तो सबसे अच्छा क्या है, दूर से राम राम कर लिया, है ना? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक साइंटिफिक जर्नल से प्रूव हुआ है कि इट्स बेटर टू अवॉइड shaking hand when you are sick or when there is chances of cold many times. अभी भी जैसे इस टाइम भी क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे हमारे आसपास बहुत लोगों को फीवर आ रहा है ना? अभी हम भी यूपी में रहते हैं, अब इसमें शायद हम आवाज से हमको लग रहा था कि काफी लोग यूपी के हैं। तो क्या हो रहा है, ये वायरल डिजीज है, तो क्या करना चाहिए, वी शुड अवॉइड कॉन्टैक्टिंग पीपल। ये सब चीजें थी कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब, या सर, इंडियन सिस्टम ऑफ ग्रीटिंग इज बेस्ट, यस, वी कैन सेफली से इन दिस टाइम, है ना? नाउ व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? ये अभी तक जितनी हमने बात की, पिछली बार, पिछले जो हमारा इंटरेक्शन आपसे हुआ था वो, और इस बार जो इंटरेक्शन हो रहा है वो, अभी तक के हमने जितनी भी बातें की वो हमने बातें की कम्युनिकेबल डिजीज की। एक बीमार आदमी से हेल्दी आदमी तक बीमारी पहुंच जाना। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विच आर नॉट इन्फेक्शियस, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं, इसीलिए क्योंकि स्लो प्रोग्रेशन होता है। इसी, अब जैसे मलेरिया है, बुखार आया, फौरन बीमार पड़ गए, मच्छर ने काटा, 3-4 दिन में बीमार पड़ गए। लेकिन ये जो डिजीज होती हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं। 65 मिलियन डेथ्स अकर ग्लोबली बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और 62% ऑफ
these, like 2/3 were due to non-communicable diseases. 65 million deaths occur globally, उसका 2/3 जो है वो non-communicable disease, and 9 million deaths occur among people under the age of 60. और मेनली कौन सी डिजीज होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज एंड क्रोनिक लंग डिजीज. अब ये हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. 4 मेन टाइप्स कौन कौन से? कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड डायबिटीज. अलग कौन सी हो गई? हाइपरटेंशन, मोटापा, जिसका एग्जाम्पल हमने प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन में दिया था, और मेंटल इलनेस है ना. ये सारी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. We are behaving like फ्लो टूट जाता है. कौन है? प्लीज Anish ji, please mute yourself. नहीं, if you are not interested, I no need to come, है ना. थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है. Interested. है ना, मजा नहीं आता है फिर, है ना. आप भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, फिर वो फ्लो टूट जाता है तो फिर मजा नहीं आता है ना. वो फिर ऐसे भी थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे. सो अब देखिए, WHO लिस्ट ऑफ कॉमन, अब यहाँ पे एक वर्ड आया लाइफस्टाइल डिजीज. ये जितनी भी बीमारियां हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की, अभी बात करेंगे हम लोग, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, इनको हम लाइफस्टाइल से जोड़ते हैं. क्या लाइफस्टाइल है अभी आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम नाम गिना रहे हैं. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, लंग डिजीजेस, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कैंसर, ये टॉप 4 लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं इंडिया की. पिछली बार मैंने बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस में हम नंबर 1 हैं. इस बार हम आपको बता रहे हैं डायबिटीज में भी हम नंबर 1 हैं. वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑल्सो, है ना. सो ये रिस्क फैक्टर्स हैं इन बीमारियों के. ये रिस्क फैक्टर है. रिस्क फैक्टर का मतलब क्या हुआ? अगर हम इनमें से कोई चीज इस्तेमाल करेंगे या कर रहे होंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि सबको होंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे. जैसे फिजिकल इनएक्टिविटी, अभी बात होगी फिजिकल इनएक्टिविटी की. ओबेसिटी, रेज्ड कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट इंटेक, रेज्ड ब्लड ग्लूकोज, अल्कोहल एंड टोबैको यूज एंड हाई ब्लड प्रेशर. ये सारे रिस्क फैक्टर हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के. अब आप खुद देख लीजिए, इनमें से कुछ चीजों के हम सब कहीं ना कहीं पे वी आर कल्प्रिट्स. कुछ नहीं होगा अगर तो फिजिकल इनएक्टिविटी, कुछ नहीं होगा तो कोई टोबैको या अल्कोहल यूज कर रहा होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या कर रहा होगा? डिक्रीज्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट इंटेक ले रहा होगा. हम बात समझ रहे हैं ना. तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अब कैसे प्रिवेंशन करें, कैसे प्रिवेंशन करें? ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की हम बात कर रहे हैं. ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इन सबको हम कैसे रोक सकते हैं? 3 है इंपॉर्टेंट चीजें: डाइटरी चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी एंड cessation of use of tobacco and alcohol. आप वापस चले जाइए, देखिए सब वही चीजें हैं. हमको रिस्क फैक्टर्स पता चल गए. अब हमको इन्हें डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी से और अल्कोहल और टोबैको यूज को कम करने से इसके ऊपर आ जाए. अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज है. अभी तक तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके हम थोड़ा सा डेप्थ में नहीं गए. A healthy diet helps to protect against malnutrition in all forms as well as non-communicable diseases. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी डाइट लें.
और हेल्दी डाइट कहां से स्टार्ट होती है? अर्ली इन लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना। ये दुनिया में अगर कोई एक कंप्लीट फूड है तो वो ब्रेस्ट मिल्क है टिल 4 months ऑफ एज। वैसे हमको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है 6 months के लिए, लेकिन एक बात है, वो बाकी हनी, डेट्स, ये मिल्क, बाकी सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिल्क, दैट इज मदर्स मिल्क फॉर द चाइल्ड। कितने फायदे हैं तो शायद आप लोग जानते हो, अभी आप लोगों ने सेलिब्रेट भी किया होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एज ब्रेस्ट फीडिंग वीक। बहुत से लोगों ने, हमारे हो सकता है सोशल साइंसेस के, होम साइंसेस के कुछ हमारी फैकल्टी मेंबर्स हो, उन्होंने किया होगा, या हो सकता है कहीं और के भी हो। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेस्ट मिल्क का जो शुरू का पार्ट होता है, फर्स्ट 3-4 days ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जब बच्चा पैदा होता है, दिस इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। दिस इज द फर्स्ट वैक्सीन विच द चाइल्ड गेट्स। उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे क्या फायदा होता है? जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं, स्टडीज ने बताया, लेटर इन लाइफ ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस उन बच्चों में कम होती है। दूसरी चीज क्या होती है उनके अंदर बहुत सी बीमारियां कम हो जाती हैं, डायरिया ये नहीं होता है। और एक चीज और है, वो क्या है? इन बच्चों का आईक्यू नॉन ब्रेस्ट फेड बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा होता है ना? ये बेनिफिट्स हैं। ठीक, अब क्या है हेल्दी डाइट? अब हम बात कर रहे हैं अपनी 18 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स एंड अबव, ये क्या हेल्दी डाइट होती है? फ्रूट, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कशन का एक मिला, कितना लेना है? एटलीस्ट 400 grams of fruit and vegetables per day. कितना? 400 grams of fruit and vegetables per day. मुश्किल चीज बता दी पूरे दिन में, लेकिन यहां पे एक चीज है जिसका ख्याल रखना है, वो पोटैटो नहीं आएगा इसके अंदर। इसके अंदर पोटैटो नहीं होगा। हमारी तो कोई रेसिपी नहीं है जो बिना पोटैटो के हो, है ना? इसके अंदर पोटैटो नहीं है, इसके अंदर पोटैटो नहीं होगा, ठीक है ना? तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स किसे कहते हैं? लेंटल्स एंड बीन्स, है ना? और होल ग्रेन्स लेनी है। होल ग्रेन्स कौन सी होती है? अनप्रोसेस्ड मिलेट्स। अभी तो हम लोग ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे थे ना, तो बल्कि G20 में तो हम लोगों ने मिलेट की डाइट भी दी। दिस इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग, है ना? व्हीट एंड ब्राउन राइस। एक चीज यहाँ पे बताते चले, और फिर आई नो थोड़ा सा भी लॉस्ट 15-20 मिनट्स, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड बेटर। जो क्या कहते हैं, हम लोग अनप्रोसेस्ड, जो हम लोग रिफाइंड व्हीट लेते हैं, मैदा जिसको कहते हैं, या कोई चीज रिफाइंड होती है, उसमें क्या होता है? हम उसके ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, है ना? और वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। ओके, सो ये हमको 400 ग्राम लेना है। अब अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट आई, क्या आई? लेस देन 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक फ्रॉम फ्री शुगर्स। फ्री शुगर्स कौन से होते हैं? कौन से हैं फ्री शुगर? वो नहीं जो फ्री में मिलते हैं, उसको नहीं कह रहे, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। फ्री शुगर्स वो हैं जो हम खाने में डालते हैं, या कोई मैन्युफैक्चरर उसके अंदर डालता है। जैसे चाय में हमने शक्कर डाली, है ना? या किसी मिठाई में हमने शक्कर डाली, ये इसे क्या, या फिर हमने क्या किया, ये जो ड्रिंक्स पीते हैं हम, है ना, वो सारे फ्री शुगर्स होते हैं। ओके, सो याद रहे, फॉर अ पर्सन ऑफ हेल्दी बॉडी वेट कंज्यूमिंग अराउंड 2000 कैलोरीज पर डे, इसको जो है 10% से ज्यादा कैलोरीज जो है वो फ्री शुगर्स से नहीं मिलनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हमको ख्याल रखना है। अब आया तीसरी चीज,
less than 30% of the total energy intake should be from fats. फर्ज कीजिए हम 2000 कैलोरीज खाते हैं, 2000, तो 600 कैलोरीज से ज्यादा हमको फैट से नहीं लेना चाहिए। अब कई तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं? जो फिश, एवोकाडो, नट्स, इन सब में हमको मिलता है, उन सब में हमको मिलता है ना। दे आर प्रिफरेबल ओवर सैचुरेटेड फैट्स। और सैचुरेटेड फैट्स कहाँ मिलते हैं? बटर, कोकोनट ऑयल, क्रीम, चीज, घी, लार्ड, इन सब में हमको सैचुरेटेड फैट्स मिलता है। तो दो तरह के हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कौन सा खाना होता है? अनसैचुरेटेड फैट्स। जैसे पॉली अनसैचुरेटेड, पूफा लिखा होता है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये हमको लेना होता है। ठीक है। यूजुअली जितने भी ज्यादातर प्लांट सोर्स का जो फैट होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है, एक्सेप्ट कोकोनट। कोकोनट का हमारा जो होता है वो सैचुरेटेड होता है ना। हम लोग लिखा सर भी कौन सा फैट कंज्यूम कर रहे हैं, है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? अरे भाई यही तो बता रहे हैं इतनी देर से, है ना। यही कौन तो सी लेनी है सर? है, अनसैचुरेटेड लेंगे। अनसैचुरेटेड इज बेटर। यही तो डॉक्टर साहब 2-4 मिनट में यही तो हम बता रहे थे आपसे, है ना। एग्जाम्पल भी दे रहे थे, है ना। अब तो रामायण खत्म पे है ना। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, तो कहां से हमको मिल रहा है अनसैचुरेटेड फैट? हमको मिल रहा है प्लांट सोर्स से। ज्यादातर प्लांट सोर्स का जो फैट होता है वो बेहतर होता है। अब देखिए, आई एम नॉट गोइंग इनटू अदर डिटेल्स, क्योंकि ये क्लास हमारी न्यूट्रिशन की क्लास नहीं है, लेकिन मोटे मोटे उस पर देख लीजिए। ये सामने आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो सोयाबीन, कैनोला, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारी चीजें। और सैचुरेटेड फैट किससे मिल रहा है? बटर, पाम, कोकोनट ऑयल, घी, लार्ड, ये सारी चीजें सैचुरेटेड फैट। कौन सी लेनी चाहिए? फिर से सर ने पूछा था, अनसैचुरेटेड फैट। अब एक फैट और होता है ट्रांस फैट। जैसे केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, सिस और ट्रांस, जो केमिकल चेंज, जो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। ट्रांस फैट जो होता है वो थोड़ा हार्मफुल होता है। और ट्रांस फैट होता कैसे, बन कैसे जाता है? आपने जो घी लिया वो अनसैचुरेटेड था, बिल्कुल सही था, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसको बहुत देर तक के बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको आप हीट करते रहे। मतलब उसी तेल को आपने से पूरी कर रहे हैं, या हम चिकन फ्राई कर रहे हैं, समोसा बना रहे हैं, तो उस तेल को हमने क्या किया? तेल हमारा बिल्कुल ठीक था, हमने बिल्कुल सही लिया, लेकिन क्योंकि वो बहुत देर से फ्राई गर्म हो रहा था तो वो बन गया ट्रांस। तो क्या बन गया? ट्रांस। तो इस तरह से जो हम लोग, जो कहा जाता है ना, जो बड़े बुजुर्ग कह गए हमसे कि बाहर की चीज मत खाओ, ऐसे ना खाओ, वैसे ना खाओ, वो इसलिए कह गए क्योंकि वो फ्रेश ऑयल नहीं लिया उसने। सिर्फ हम समोसे को क्यों कहें, इवन KFCs एंड ऑल, है ना। हमने क्या किया? लॉन्ग ड्यूरेशन तक के उसको हीट किया और हाई टेम्परेचर पे किया, वो क्या बन गया? ट्रांस। और ये जो ट्रांस फैटी एसिड, ट्रांस फैट होता है, ये बहुत हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए। कहां कहां मिलता है? कभी कभी इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट होता है, और अगर आप पढ़ पा रहे हो तो वो सारी चीजें हैं जो हमको पसंद है। बेक्ड एंड फ्राइड फूड्स, फ्रोजन पिज्जा, पाइज, बिस्किट्स, वेफर्स, स्प्रेड्स, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं खा रहे हैं, वो सब उसके अंदर क्या है? फास्ट फूड, सॉरी, ये ट्रांस फैट है। तो ये सारी चीजों को हमको, है ना। अब सॉल्ट हमको लेस देन 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर डे लेना।
कि जो हम खाने में टोटल ले रहे हैं, देखिए सॉल्ट फूड में पहले से भी मौजूद है, कुछ हम सॉल्ट ऐड करते हैं टेस्ट के लिए. So less than 5 gram of salt equivalent to about 1 teaspoon per day. And this salt should be iodized. This salt should be iodized. Iodized salt होना चाहिए. Clear? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल भी दिया है. I'm not promoting any brand. है ना? तो ये हमारा सॉल्ट लेस देन. तो अब तक के हम लोग क्या रिवाइज कर सकते हैं? हम लोगों ने क्या क्या बोला, कितना ले रहे थे वेजिटेबल्स? Yes, sir. कितना ले रहे थे मैडम? कितना ले रहे थे? 400 gram. हाँ? 400 gram from fruits and vegetables. 400 ग्राम. उसमें क्या इंक्लूड नहीं कर रहे थे मैडम? Potato, sir. पोटैटो. Potato. नहीं. ठीक है. अब कैसे? ये प्रैक्टिकल चीज. सॉरी मैं घड़ी देख रहा था टाइम के लिए. हाँ, eating at least 400 gram or 5 portions of fruits and vegetables per day reduces the risk of non-communicable disease, and it helps to ensure an adequate daily intake of dietary fiber. Dietary fiber कितना important है, कितना important है कि हम आपको क्या, ठीक है ना? हमने पूरे लेसन में कहीं इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की तो बात नहीं करी, जबकि टॉपिक तो हमारा यही था सर, वेस्ट अरे मैनेजमेंट. मैडम पिछली बार हो चुका है टॉपिक, वो पिछली बार हो चुका है टॉपिक. पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, भूल गई आप? हमने आपको सर दिखाया था. इंस्टीट्यूशनल मेजर्स तो नहीं पढ़े सर हमने. अरे मैडम पिछली बार हो चुका है वो, आज दूसरी चीज चल रही है. ठीक है ना? आज सर एक पॉइंट अभी इसमें रह गया सर आपकी स्लाइड में, उसे प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए. बताइए. अभी तो बहुत एक्सप्लेन करना बाकी है, लेकिन आप पूछिए. ओके सर. सर इसमें है एक ट्रांस लास्ट में जो आपने बताया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और लिखा है उसमें slide वो में. हमने जानबूझ के नहीं बताया, रुमिनेंट वाला ना, जी जी. वो इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने हटा दिया. अभी इस सर पे लेके क्वेश्चन है. इस पे आइए मैम, प्रैक्टिकल चीज पे जरा. यहाँ पे ये हमारे आपके लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है ना? क्या है ये? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इंटेक्स कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? ऑलवेज इंक्लूड वेजिटेबल्स इन मील्स. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल्स को जरूर इंक्लूड करें, सिर्फ आप मीट ना लें. Eating fresh fruits and raw vegetables as snacks. जो स्नैक्स हम करते हैं, स्नैकिंग करते हैं शाम के 5 बजे या दिन के 11 बजे, उसमें हम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स को ले सकते हैं. जैसे कौन सी, कौन बताएगा? मैडम बंसल मैडम बताएंगी, क्योंकि वो अभी इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, पिछली क्लास के ऊपर. बताइए मैडम. आप अपने को अनम्यूट कीजिए पहले मैडम. आप बताइए सर. कुकुम्बर, कैरेट्स, टोमेटोज. नहीं, अब देखिए मैम, ये बताइए कि आप 5 बजे क्या ले सकती हैं, है ना? हम लोग क्या लेते हैं? बारिश तो एक बहाना, वो पकौड़ी खाना पसंद करते हैं या मोमोज खाना पसंद करते हैं, है ना? ये सब चीजें. सैंडविच, अब तो सैंडविच का भी फैशन है. हम क्या ले सकते हैं? एप्पल ले सकते हैं, है ना? बनाना ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट है ना? ईटिंग और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स. हमको अपनी इंस्टिंक्ट को कर्व करना है. और हमको, अच्छा होता क्या है ना, क्योंकि चाय के साथ ले रहे होते हैं तो हमको अच्छा लगता है वो सारी चीजें, तो लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो हमें 400 ग्राम जो है वो हम ले सकते हैं. और याद रहे, ये प्रूवन फैक्ट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सर जी सर, सारी समस्याओं की जड़ तो चाय ही है और छोड़ भी नहीं सकते हैं. नहीं मैडम, छोड़ तो सकते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, है ना? देखिए चाय के साथ एक और प्रॉब्लम है. अगर बात छिड़ी है तो मैं बता दूं, चाय क्या करता है, अगर हमने खाना खाने के फौरन बाद चाय ली तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है. जो हम आयरन, एक तो पहले से देखिए हमारी डाइट जो है ना वो आयरन रिच फूड से कम है, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ अस आर वेजिटेरियन. तो जो प्लांट ओरिजिन का
क्या कहते हैं आयरन होता है वो एब्जॉर्प्शन भी उसकी कम होती है, क्योंकि एक केमिकल होता है फाइटरेट और ऑक्सीलेट, वो होते हैं। ऊपर से हमने क्या, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, हमने क्या किया, चाय पी ली। तो चाय जो होती है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। हमको क्या करना चाहिए इस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए? वही चीज जो लिंडे कर रहे थे, हमको लाइम जो है अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। सलाद अगर हम ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं, उसमें हम नींबू निचोड़ दें, तो विटामिन सी क्या करता है, ये एनहांस कर देता है आयरन एब्जॉर्प्शन। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि हम खाली पेट पे रहे होते हैं, वो अंग्रेज सिखा गए हमको बेड टी और ये सब, है ना, अभी भी हम सीखे हुए हैं। गैस्ट्राइटिस भी करता है ना, बहुत से लोगों को गैस्ट्राइटिस भी होती है, जलन जो होने लगती है ना। तो ये सारी चीजें, हर चीज, कोई भी चीज अगर हम एक्सेस में करेंगे वो नुकसानदेह होगी, चाहे चाय कॉफी कुछ भी हो, है ना। एनीथिंग इन एक्सेस वुड बी हार्मफुल। हम क्या कर सकते हैं चाय में, अभी क्या कर सकते हैं, शुगर की मात्रा को कम कर सकते हैं। वो 10% जो हमने बताया था आपको, कि सबसे ज्यादा चाय से ही शुगर मिलती है, फ्री शुगर जो होती है। हम 1 चम्मच भी डाल रहे हैं और दिन में 5-6 कप चाय पी रहे हैं, तो अच्छी खासी शुगर हो गई। तो इसका थोड़ा सा हमको ख्याल रखना है। क्या फंक्शन है विटामिन सी का सर? जी सर, विटामिन सी का फंक्शन कुछ बता, आयरन को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? एब्जॉर्प्शन को, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है सर, है ना। तो वी शुड टेक, ये जो कहते हैं ना, नींबू निचोड़ लिया सलाद में, जैसे अभी सीजन आ रहा है सलाद खाने का, जाड़े आने वाले हैं कुछ दिनों में, हम लोग सब लोग लेंगे, तो हम नींबू निचोड़ सकते हैं उसके, है ना। तो थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को यूज करनी चाहिए। अब आया रिप्लेसिंग बोथ सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स विथ अनसैचुरेटेड, इन पर्टिकुलरली विथ पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अब कैसे रिड्यूस करें? एक तो कुकिंग के तरीके से, स्टीमिंग और बॉइलिंग इंस्टेड ऑफ फ्राइंग व्हेन कुकिंग, कोशिश कर सकते हैं। टेस्ट, देखिए फैट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिना फैट के खाना जो है टेस्टलेस हो जाता है, टेस्टलेस भी हो जाता है। फैट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि फैट अगर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी का लॉस होगा। दूसरा, रिप्लेसिंग बटर, लार्ड एंड घी विथ ऑयल्स रिच इन पॉली अनसैचुरेटेड फैट सच एज सोयाबीन, कैनोला, कॉर्न, सेफ्लॉवर एंड सनफ्लावर ऑयल्स, इनको हम यूज कर सकते हैं। हमने आपको तरीका बता दिया किस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। नाराज हो। Eating reduced fat dairy foods and lean meats and or trimming the visible fat from meat, ये हमारी कंट्री के लिए कम है, बाहर की कंट्रीज के लिए ज्यादा है। और तीसरी चीज तो हम सबके लिए है, लिमिटिंग द कंजम्पशन ऑफ बेक्ड एंड फ्राइड फूड्स एंड प्री पैकेज स्नैक्स एंड फूड्स। जितना कम हो सके उतना हम डोनट्स, केक्स, पाइज, कुकीज, बिस्किट्स एंड वेफर्स को हम इस्तेमाल करें। क्यों? एक तो फैट है, और कौन सा फैट है? ट्रांस फैट है, उसके अंदर हमारा ट्रांस फैट है, तो इसको हमको कम करना है। सॉल्ट इंटेक को हमको रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। साथ साथ पोटेशियम को बढ़ाना है, अपनी बॉडी में पोटेशियम ज्यादा लेना है। और पोटेशियम कहां से मिल रहा है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। गुआवा, अभी कुछ दिन पहले आप कोविड टाइम में एक चीज बहुत खा रहे थे, आप क्या चीज खा रहे थे? ये अभी हम सुन रहे थे ना, प्रयागराज के कुछ लोग हैं यहाँ पे, वहां पे बहुत होता है आंवला, आंवला का मुरब्बा, प्रतापगढ़, इधर आंवले में पोटेशियम बहुत होता है। सर मैं प्रतापगढ़ से हूँ। हाँ देखिए, अब आप बस अब आंवला खाइए, है ना। तो ये क्या है, इसके अंदर पोटेशियम होता है। पोटेशियम क्या करता है? सोडियम को मिटिगेट करता है, इफेक्ट को मिटिगेट करता है। तो हम पोटेशियम ले, हमने एग्जांपल दे दिया, गुआवा जो होता है उसमें भी पोटेशियम अच्छा होता है, बनाना में पोटेशियम अच्छा होता है, और आंवला में पोटेशियम बहुत होता है। तो इन सब चीजों को हम ले सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग, और कौन से फूड जिसमें सॉल्ट ज्यादा होता है वो बने हुए हैं, हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या? ये पिकल्स, ये पिज्जा, हमारी मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसी बात कर रहा हूँ, हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, हमसे बहुत करते हैं, अरे जरा जाफर हमारा ब्लड प्रेशर नापो, हम तो कुछ खाते हैं, हम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता था।
तो एक दिन हमने हिम्मत करके, जब मैं परमानेंट हो गया तब ऐसे नहीं, मैंने जब हमने कहा मैम आप इतना तो दाल मोट खाती हैं, शी वॉज वेरी लीन एंड थिन, बहुत ही हमने कहा मैम आप दाल मोट और अचार बहुत खाती हैं, सारा ब्लड प्रेशर हमसे नपवाती हैं। तो शी स्माइल्ड एंड शी स्टॉप्ड इट। ये हमारा जो है ना दाल मोट और ये जो पैकेज फूड होते हैं, ये ज्यादा इसके अंदर सॉल्ट होता है। ईटिंग फ्रेश फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स स्नैक्स इंस्टेड ऑफ शुगर। अब देखिए एक बहुत जाते जाते बस बिल्कुल आखिर की टाइम बच रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस रिस्क ऑफ, अब फिजिकल एक्टिविटी क्या है मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले आप फायदे देख लीजिए। जितनी भी मौतें होती हैं, ऑल कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय 30%। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमृत पी लेंगे, है ना, लेकिन 30% ऑफ द मोर्टेलिटी कैन बी रिड्यूस्ड। ये इंडिविजुअल लेवल की नहीं बात होती है, कम्युनिटी लेवल की बात हो रही है ना। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बाय 35%, ये जो हार्ट अटैक्स है ना, ये सारी चीजें जो हो रही हैं। टाइप 2 डायबिटीज अप टू 40%, कैंसर कोलोन 30%, ब्रेस्ट कैंसर 20%, डिप्रेशन by 30%, डिमेंशिया 30%, और हिप फ्रैक्चर्स by 68%। ये कैसे हो रहा है? सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से। तो अभी डाइट की बात की है ना, आप याद कर रहे हैं ना, 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, और तीसरा था सेसेशन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। तो इतने बेनिफिट्स हैं फिजिकल एक्टिविटी के। अब वो फिजिकल एक्टिविटी है क्या, है ना, फिजिकल एक्टिविटी है क्या? क्या है फिजिकल एक्टिविटी? चिल्ड्रन एंड यंग पीपल मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 60 मिनट्स पर डे। ना हम चिल्ड्रन तो है नहीं, हम आते हैं एडल्ट्स में। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज most if not all days should include flexibility, muscle strength and endurance twice a week। और अगर थोड़ा और इंप्रूव करना चाह रहे हैं, वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं, तो 60 to 90 minutes to improve when already in poor health। and अब मॉडरेट एक्सरसाइज कहते किसको है? ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, गार्डनिंग, ये सारी की सारी क्या है? ब्रिस्क है ना। अब कितनी चाहिए? ये सारी जो हम बता रहे हैं उसका सार है, उसका सारांश है। ऑल एडल्ट्स शुड अंडरटेक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी। मसल स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है, जैसे एक्सरसाइजिंग विथ वेट्स, योगा और कैरिंग हैवी शॉपिंग बैग्स। ऐसा नहीं है शॉपिंग करने के सिर्फ नुकसान है, शॉपिंग करने के फायदे भी हैं। आप उनको बैग्स जो है उठा उठा के ला सकते हैं, है ना। तो कैरी ये कब करना है? एटलीस्ट ट्वाइस। अब ये रोज शॉपिंग पे नहीं जाना है, एटलीस्ट 2 days अ वीक। अब लेफ्ट साइड वाली स्लाइड देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडल्ट्स जो कि हम लोग हैं, सब लोग 19 से ऊपर हैं और 64 से कम ही है, शुड एम फॉर एटलीस्ट 150 minutes of moderate intensity activity for each week। एक दिन का नहीं है, एक हफ्ते का है। आप लगा लीजिए कितना बैठा है एक दिन का, डिवाइड कीजिए 150 को 7 से, कितना आया? रफली 25 मिनट्स, 22 मिनट्स। क्या हम अपने शरीर के लिए इतने बिजी हैं कि हम 20-25 मिनट्स नहीं निकाल सकते? और क्या करना है? मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी करनी है। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी क्या है? ब्रिस्क वॉकिंग, कुछ नहीं। आप प्लीज किसी झाम में मत पड़िए कि हम साइकिल खरीदेंगे और मतलब माहौल बनाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ वॉक करना शुरू कर दीजिए। आपके सबके पास स्मार्टफोन है, अब तो स्मार्ट वॉच भी सबके अंदर आ गया है। आप देखिए 10,000 स्टेप्स तकरीबन पर डे,
तकरीबन तकरीबन। लेकिन स्पीड इंपॉर्टेंट, उसके अंदर स्पीड आप देखिएगा, वो सारे ऐप में स्पीड भी आती है ना, आप देखते होंगे। दूसरा तरीका क्या है, स्टेयर्स चढ़ना, स्टेयर्स है ना, अगेंस्ट जो थोड़ा सा हम स्टेयर्स को चढ़े, वो कर सकते हैं, तेजी तेजी से थोड़ा सा चढ़ना है। ये हमको एक्टिविटी करनी है। इससे क्या होगा, जो पिछली स्लाइड पे अगर हम चले जाएं, ये सारे फायदे आप अपने कमरे में लगा लीजिए। देखिए इतना भुलक्कड़ नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, मोटे नहीं होंगे, डायबिटीज और हार्ट फेलियर की चांसेस कम हो जाएंगी। ये सिर्फ करना क्या है, हमको चलते रहना है, चलती का नाम गाड़ी है ना। तो 20 मिनट्स 25 मिनट्स पर डे। अब देखिए ये एग्जांपल्स और हमने दे दिए। अगर किसी को कोई सुन रहा है, ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, हाउस वर्क एंड डोमेस्टिक कोर्स, सबसे अच्छी एक्सरसाइज जानते क्या है, जो चुटकुले चले कोविड के टाइम पे, पोछा लगाना। जो हम लोग पोछा लगाते हैं, जो मॉपिंग जिसे कहते हैं, वो मॉपिंग वो वाली नहीं, ऐसे वाली नहीं। आप कहेंगे बड़ा प्रैक्टिस है इनको, है ना। आपको क्या करना है, बैठ के जो लगती है उसमें सबसे ज्यादा एक्सरसाइज होती है। अब तो सर डंडा आ गया है। हाँ, अरे हर चीज में डंडा ही है डॉक्टर साहब। जनरल बिल्डिंग टास्क लाइक कूपिंग, थैचिंग, पेंटिंग, है ना, और कैरिंग और मूविंग मॉडरेट लोड्स, 20 किलो से कम के, है ना। ये हम लोग, ये सारी डॉक्टर साहब आप देखिए मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। अच्छा, विगरस एक्सरसाइज कौन सी हुई, रनिंग। अगर हम रन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वॉकिंग और क्लाइंबिंग ब्रिस्कली अप अ हिल, तो आपके, हम लोग बहुत से लोग फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स का फायदा उठाइए, आप सीढ़ियां चढ़िए। फास्ट साइकिलिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, ये सारी की सारी हमारी विगरस इंटेंसिटी है। डॉक्टर साहब बस छोटी सी चीज याद कर लीजिए, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं सोचता हूं आपसे कहूंगा तो खुद भी करूंगा। वो क्या है, 20 to 25 मिनट्स आपको हमको करनी है ये एक्सरसाइज। इससे हम बहुत सी चीजों से हम लोग कर सकते हैं। वॉकिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, अगर हमने स्मोकिंग छोड़ दी तो सोने पे सुहागा हो गया। स्मोकिंग इज अ लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी एंड डेथ। Approximately 1/3 of the South Asian patients with MI are smokers. और डॉक्टर साहब, there is nothing called as safer cigarettes. कोई जहर सेफ हो ही नहीं सकता। So ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हमको ध्यान रखना है। तो it is not that diabetes, heart disease and obesity run in your family. Basically it's that no one runs in your family, है ना। ये एक पुरानी कहावत है और उसको जो है हम लोग ले रहे हैं। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? सर सॉल्ट को लेके क्वेश्चन है। जी मैडम बताइए। सर कुछ लोग आजकल नए फैड्स चले हैं कि वो लोग रॉक सॉल्ट और ये सब यूज कर रहे हैं व्हाइट आयोडाइज सॉल्ट की जगह। हाउ आर दोस सॉल्ट्स डिफरेंट, और मतलब अपार्ट फ्रॉम आयोडीन और कुछ उन सॉल्ट्स में डिफरेंट होता है सर, रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट जो भी होते हैं? मैम देखिए ऐसा है, मिनरल कंटेंट होता है, मिनरल कंटेंट। देखिए रॉक सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट होता है। रॉक सॉल्ट को हमेशा ही कुछ लोगों ने अच्छा माना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर और भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है मैडम, हम लोग सॉल्ट टेस्ट के लिए ले रहे हैं और सोडियम के लिए ले रहे हैं ज्यादातर। तो लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक। हम लोग कोशिश यही करें कि नॉर्मल सॉल्ट है जो वही सेंधा नमक कैसा होता है कंजूस? नहीं मैडम, सर अलग अलग होते हैं। बस कोशिश ये करें कि नमक कम से कम, किसी का नमक ना खाएं ज्यादा। तो ओबेसिटी क्या हुआ सर? ओबेसिटी सर मोटापा होता है। मोटापा इसको मेजर करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका सर ये होता है कि हम वेट को हाइट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे फर्ज कीजिए वेट हमने 60 किलो 60 किलोग्राम लिया,
और हाइट को हम मीटर में नापते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। जैसे फर्ज कीजिए किसी की हाइट 1.2 मीटर है, तो 60 डिवाइडेड बाय 1.2 अगेन डिवाइडेड बाय 1.2, ये आ जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अगर 25 के अंदर होना चाहिए हमारा, ठीक है सर, 25 से ऊपर फिर ग्रेडिंग है उसकी। थैंक यू सर, थैंक Sir, I have one more doubt, sir. चाय और कॉफी का सस्टेनेबल Can you just tell me the reason why कॉफी heart दोनों ही disease हानिकारक rate है are अगर हम very ज्यादा high? मात्रा में ले रहे हैं। सर ग्रीन टी का क्या रोल है? ज्यादा मात्रा में लेना हानिकारक होती है सर, कोई भी चीज, है ना। जी मैडम फरमाएं। सर ग्रीन टी का रोल? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ मैम, हर स्टडी अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मैम कुछ भी आप लें, बस कम मात्रा में। कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है ग्रीन टी से, है ना। तो मेरा आप लोगों से क्या, मेरा अपना भी यही मानना है कि जो भी चीज ले मॉडरेशन में, हर चीज सर मॉडरेशन में। सर जैसे शुगर जिसका लेस हो जाता है, जिसको ब्लड शुगर नहीं है, तो उसके लिए क्या लिया जा सकता है? मैम शुगर अगर किसी का लेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है पहले तो ये जानना चाहिए, क्योंकि देयर आर मेनी कॉजेज फॉर somebody is getting हो सकता है आप ठीक से खाना ना खा रही हो, बहुत ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग ज्यादा हो रही हो, है ना, सुबह नाश्ता किया फिर रात में खाना खा रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हो। अगर कुछ भी ऐसी चीज हो रही हो तो शुगर को सबसे सही ठीक करने का तरीका तो मैडम ORS होता है, क्योंकि ORS में सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है और ग्लूकोज भी होता है। वरना सबसे आसान तरीका इसके अलावा अगर ORS आप नहीं कैरी कर पा रहे हैं तो बनाना होता है, केला। So, am I audible? Yes ma'am, please. So, I just want to know why in India heart rate diseases are very high after having good health, good food. Even though, why still heart rate diseases are very high? People are dying because of heart disease. Not only dying madam, this is affecting our young generation also, है ना। Previously 40 plus 50 plus people were having, सर एक्सरसाइज करते टाइम लोगों की डेथ हो जा रही है। पहले मैम एक चीज हम, अच्छा एक्सरसाइज को मैं एक चीज बता दूं, मैंने आपको बहुत ही मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज बताई है और 20 मिनट्स की बताई है। हमने आपको जिमिंग करने के लिए नहीं कहा है ना। ये सारी चीजें अंडर सुपरविजन होना चाहिए। अब मैम का क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ क्यों हो रही है? सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रही है मैम, पूरी दुनिया में हो रही है, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल लाइफस्टाइल का है। हम अब अनाप शनाप खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी है नहीं, स्लीपिंग पैटर्न बदल चुका है, हम रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है, फिर अल्कोहल यूज, सिगरेट यूज, ये सारी चीजों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें डाइट बहुत बड़ी रोल है। डाइट और फिजिकल इनएक्टिविटी ये एक काफी बड़ा इसका क्या कहते हैं रोल है, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का, जिसकी वजह से हम लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसका हमको मैडम ख्याल रखना पड़ेगा, डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। डाइट, ये जो स्विगी और जोमेटो, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, है ना, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर का फूड, पहले बाहर का फूड बुरा माना जाता था, अब जो है वो क्या हो गया है, एक हमारे पार्ट लाइफ का हिस्सा हो गया है ना। तो मैडम ये एक फैक्टर है, मैंने अभी आपको बताया भी, क्योंकि देखिए अब क्या है ना, क्वालिटी, देखिए बहुत सी चीजें हम लोग डिटेल में नहीं बात कर सकते। एक होती है क्वांटिटी ऑफ फूड, एक होती है क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड हमेशा महंगी खाना, अच्छी चीज महंगी ही होगी, मतलब महंगी का मतलब ये होगा कि कॉस्टली होगी, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि ऑर्गेनिक फूड आप, there was a study, because I teach this to medical undergraduates also, nutrition, अभी मेरा सिलेबस खत्म हुआ है, थोड़ा सा मेरा रिवाइज्ड भी है। मैडम हम लोग प्रोसेस्ड चीजें ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, और इन प्रोसेस चीजों की वजह से ही हमारी डाइट, क्योंकि हमारे डाइट में वो फाइबर कम हो गया है। फाइबर, अच्छा फाइबर क्या करता है? फाइबर क्या करता है, दो काम करता है। एक ही, कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज होती है?
देयर इज गुड बुरी कोलेस्ट्रॉल, देयर इज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो फाइबर जो है गुड, जी 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 सर, फाइबर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट करता है। फाइबर डाइट में कहां से आती है? छिलके वाली चीजें खाने से। तो जितनी भी रिफाइंड चीज होती है उसमें छिलका नहीं होता है ना। और कोशिश ये कीजिए जितना नेचुरल हो सके, ये हम आपको नहीं कह रहे, हम अपने को भी कह रहे हैं, है ना। दिस इज नॉट समथिंग दैट कि हम सिर्फ प्रीच करने के लिए बैठे हैं, हमको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सारी चीज, फ्रूट्स, जितनी चीजें, जितना हम कम बताएं फ्रूट्स के बारे में, मतलब जितना ज्यादा बताएं उतना कम है। तो फ्रूट्स, अब आप फौरन कह दोगे कि सब में तो केमिकल है, क्या करें, यही सब तो प्रॉब्लम है ना। तो जितना कोशिश हो सके हम लोग अधिक इसको हम लोग करें। सब्जियों में भिंडी, इसमें अच्छा खासा फाइबर होता है। अभी सेम आ जाएगी जाड़ों में, इसमें फाइबर होता है ना। जाड़ों में तो बहुत सी फाइबर वाली चीजें आई, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सारी चीजें। अच्छा, पपाया 12 मास मिलता है ना। तो इन सारी चीजों को हमको कोशिश करनी है उसको। अच्छा, वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है, जहां हमने ओवर कुक किया उसके मिनरल कंटेंट कम हो गया। तो जो मैडम कह रही थी कि क्यों हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। अब तो हम क्या करते हैं ना, बगल वाले कमरे में भी जाते नहीं है, फोन पे ही बात कर लेते हैं, अगर बगल वाला भी है ना। ये बहुत, टीवी रिमोट आ गया है ना। वो एड आप लोग मीम्स देखते होंगे ना कि 90s में टीवी मोटा होता था, इंसान पतला होता था, अब टीवी पतला हो गया और हम मोटे हो गए। वो गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये सब हो रहा है ना। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को देखना चाहिए। और अब हमको शायद बंद कर देना चाहिए। हमने कहा था ना एक्सेस हर चीज की बुरी होती है, तो क्लास की एक्सेस जो है ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर, वेरी नाइस सेशन सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir, and thank you, everyone. Thanks, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir.